Hello everyone, let us start with our question. In this question, what is given? That figure shows a circular loop of radius A with two parallel wires all in the same plane of the paper. So this is a loop, okay, of radius A, and these are two wires and they are in the same plane. Now the distance of each wire from the center is given as to be D. Okay, this is the distance from the center. The loop and the wire are carrying the same current I. Okay, now the current in the loop is in the counterclockwise direction. Here the current we know that it is in the counterclockwise direction, and when we are seeing it from the above, magnetic field at P due to the current in the wire are in the opposite direction. So basically this is not concerned. Now when D is close to A, okay, when D value is close to A but the wires are not touching the loop, it is found that net magnetic field on the axis of the loop at a height h above the loop is 0. Now in that case we need to find what is the direction of the current in the wire, whether it is from P to Q or Q to P, or in this wire from S to R or R to S, and also we need to find what is the relationship between H and A. Okay, now here, now because we know that magnetic field due to this current carrying wire, okay, we know that due to a circular loop it is along the axis. Okay, so the current is in the clockwise direction, so magnetic field due to this wire would be out of the plane of paper. Okay, so if we draw this situation, let us just draw this situation. So we say that it would be viewing just like a triangle. We can just draw it like this. Okay, now what is the thing? Now the due to this wire, so this loop is placed here. So due to this wire, because it current is going in the this counterclockwise direction, so that magnetic field would be coming out of the plane of paper. That means this is the direction of the magnetic field due to the loop. Okay, now if we want to make the net magnetic field here to be 0, now what should be the direction of the magnetic field? So the direction of the magnetic field due to the wire should be in the downward direction. Net should be in the downward direction. So how can net be in the downward direction? For example, this is wire 1, okay, and this is wire 2. How can the net be in the downward direction? It can be in the downward direction when this magnetic field due to 1 is in this direction and magnetic field due to 2 is in this direction. This is B1 and this is B2. Then only we can have net magnitude in the downward direction. Okay, because the component, if we say that this angle is our theta and this angle would be theta because it is the symmetric location. So here the component would turn out to be, let's say this is due to loop, or we can say that this is due to circle. Then here the component would be B1 cos theta plus B2 cos theta, and the parallel component or the horizontal component would get cancelled. Okay, so the net magnetic field to be 0, this magnetic field and the resultant magnetic field should be equals to 0. Okay, if this is the condition. Okay, now what should be the direction of the current in the wire 1? So the direction of current in the wire should be from P to Q. It should be P to Q. Why? Because when we are getting the direction of magnetic field, then only it could get in the downward direction. Because if we curl our finger with thumb in this direction, then our fingers will point in the downward direction. Okay, now to get magnetic field in the downward direction from S to R, what should be the direction? What should be the direction? So the direction of current should be in S to R, so that we could place our finger thumb in this direction, then our curling of the finger would be in the downward direction. That means our current direction here would be from P to Q and here would be S to R. So P to Q, S to R. So this could be correct, this could be correct, and our C option could be correct, but D option cannot be correct option because here it is given as R to S. Now having said that, so we are just drawing a diagram for the resolved component of the magnetic field. Let us draw. So this is our magnetic field due to the coil. So this would be the net magnetic field due to these two wires. So this is the horizontal component of the magnetic field due to one wire, and this is the horizontal component of the magnetic field due to the another wire. So what are the different values? So it is magnetic field due to the this circle. It would be here component would be due to B1. It would be B1 cos of theta, and due to B2 it would be B2 cos of theta. Okay, now here the component would be horizontal would be B1 sin theta, and here it would be B2 sine of theta. So for the net to be 0, there should not be any magnetic field in the horizontal and the vertical direction. So we can say that our B1 sin theta should be equals to B2 sin theta. Okay, that means our B1 should be equals to B2. This is one of the condition. Similarly, we can say that in the vertical direction, we can just write the equation. So BC would be equals to 2 times. We can just say, because we know that B1 and B2 would be equals, so we can say that B due to this circle should be equals to B1, or we can say that B1 or B2, anything, into cos theta. Okay. Now
let us check what is the magnetic field due to the circle. So for example, let us say that because we have been given that this D is basically approximately equals to A, so we can say that in our triangle here, we can say that this distance to be A, this distance to be A, and this is basically the height, which is h. So what would be the value of the hypotenuse? So it would be A square plus h square in the square root. Okay, now we can put the value of the magnetic field due to the circle. So it is equals to mu naught I A square radius square divided by 2 times radius square plus the distance square. So distance is h square to the power 3 by 2. Now due to the this is not 3 but it is 2. Now due to the this straight wire, it is equals to mu naught I divided by 2 pi and the distance. So what is the distance from here to here? It is root A square plus h square. So it would be A square plus h square in the square root, that we can take power to be 1 by 2. Okay, multiplied by cos theta. So what would be the value of cos theta? If we can see cos theta, it would be A divided by A square plus h square. So into A divided by A square plus h square, and that would be in the square root 1 by 2 power. Okay, now if we solve this, then we can say that mu naught I A square divided by, we can say that 2 A square plus h square to the power 3 by 2. This value would be equals to mu naught I into A divided by what? Divided by pi A square plus h square, because this is power 1 by 2, this is power 1 by 2. Now if we solve this, then our h value would turn out to be approximately equals to 1.2a. Okay, this is the value of our h. This should be our h height. So which option would be the correct option? If we can, this is our h and not p. Okay, approximately 1.2a. So which option could be correct? So we see that our correct option would be our C option, because here it is h is equals to 1.2a. This is wrong, because here h is a, here h is a, and here the direction of current which was given is wrong. Okay, so correct option would be our C option. So hope you have understood this solution. Thank you. इस क्वेश्चन में दिया गया है कि फिगर शोज अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस ए. कोई वायर है, सर्कुलर लूप है, जिसकी रेडियस क्या है ए, जो 2 लॉन्ग पैरेलल वायर के बीच में रखा हुआ है, नंबर 1 और नंबर 2. ऑल इन द प्लेन ऑफ पेपर, सारे क्या रखे हैं? प्लेन ऑफ पेपर में रखे हुए हैं. द डिस्टेंस बिटवीन ईच वायर एंड लूप, सेंटर से जो लूप के डिस्टेंस दी गई है वायर की, वो कितनी दे रखी है? स्मॉल डी. द लूप एंड द वायर आर कैरिंग सेम करंट, दोनों में क्या हो रही है? सेम करंट फ्लो कर रही है. द करंट इन द लूप इज इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो करंट फ्लो कर रही है लूप में वो क्या है? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. तो फर्स्ट हमें ये बताना है व्हेन d इक्वल्स टू a. ओके, जब d बहुत स्मॉलर देन, मतलब सिमिलर टू a है बट नॉट टचिंग द लूप, it is found that net magnetic field on the axis of the loop is just 0. जो एक्सिस ऑफ द लूप है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. एट हाइट h हाइट क्या लिया जा रहा है? अब लिया जा रहा है. तो कौन सी कंडीशन में ये होगा? h की वैल्यू क्या होगी अप्रॉक्सीमेटली, ये हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वायर को h हाइट पे ले लेते हैं, ये जो सर्कुलर लूप है, और उसके ऊपर क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं. तो इसके लिए क्या करते हैं? एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हमने रफ फिगर ड्रॉ कर लिया. ये वायर 1 है, ये वायर हमारा क्या है? 2 है, और ये इस वायर का सेंट्रल पॉइंट है. तो हमने एज्यूम कर लिया कि इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इस डायरेक्शन में लग रहा है. ये क्या है? B1 है, या B2 भी मान सकते हैं इसको, B या B2 ही मान लेते हैं. और इस डायरेक्शन में जो लग रहा है ये क्या है? B1 है. ओके, तो ये जो हमारा एंगल है ये क्या है? थीटा है, और ये भी एंगल क्या है? हमारा थीटा है. ओके, तो इस डायरेक्शन में जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ये जो बीच में एंगल आएगा, ये वाला एंगल कितना आएगा? ये 90 माइनस थीटा आएगा. ओके, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ से B1 को जब रिजॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? ये आ जाएगी इस डायरेक्शन में, इस लाइन पे हमारी वैल्यू आएगी. तो ये आ जाएगा हमारे पास, इस लाइन पे आएगा B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी. ओके, और ये हाइट हमारी क्या हो गई? h हो गई, और यहाँ अंडर रूट में ये जो डिस्टेंस आ जाएगा a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर के क्या होगा? इक्वल आ जाएगा. और
इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करने पर ये हमें कितना मिलेगा, ये खुद का जो सर्कुलर रिंग होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। और यहाँ क्या आएगा B1, ये क्या आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा B2 साइन थीटा। ओके, तो ये B1 जो है इसके जब इक्वल हो जाएगा तभी हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसने बोला है कि लूप पे उस पॉइंट पे एक्सिस पे क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो B होगा वो कब इक्वल हो जाएगा, जब ये B1 कॉस थीटा प्लस B2 कॉस थीटा के जब इक्वल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। और दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2B1 कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। ओके, रिंग की वजह से फोर्स अपवर्ड, क्योंकि उसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करी थी, इस वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो इस कंडीशन में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो हो जाएगा एक्सिस पे। अब यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड उसके लिख सकते हैं कि B1 क्या होगा, तो वायर की वजह से क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई, ये सर्कुलर कॉइल की वजह से है। ओके, हम क्या कैलकुलेट करें, सर्कुलर कॉइल की वजह से पहले कैलकुलेट करें। तो सर्कुलर कॉइल से एट अ डिस्टेंस h हाइट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, अपॉन में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के पावर 3/2 होता है। ओके, ये रिंग की वजह से होता है, जो सर्कुलर कॉइल होता है उसकी वजह से होता है। और साथ ही में हमारे पास ये वैल्यू b की होती है, तो इस b को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, ये हमारी वैल्यू हो गई। ओके, इसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, एक मिनट, तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के पावर क्या हो गया, 3/2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा आया ये रिंग की वजह से होता है, इक्वल्स टू 2 इंटू, अब वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एट अ डिस्टेंस h वो क्या होता है, तो ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और r की वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के क्या है, इक्वल है। ओके, तो ये हो गया हमारा इसकी वैल्यू इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ये क्या होता है, ये बेस ए है, हाइपोटेनियस कितना है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के पावर क्या आ जाएगा, 3/2, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी म्यू नॉट आई ए अपॉन में क्या आ जाएगा, पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ से जो टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, एक ए कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमें यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो h की जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ जाएगी, 1.2a के इक्वल आ जाएगी। ओके, तो अप्रॉक्स ये वैल्यू क्या आएगी, 1.2a के इक्वल आएगी। तो फोर्थ में क्या होगा, ओनली सी ऑप्शन क्या हो रहा है, इससे मैच हो रहा है, सो सी इज द ओनली राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमसे क्या बोला है कि कंसीडर करिए कि d है ग्रेटर देन a है, d डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, एंड द लूप इज रोटेटेड अबाउट इट्स डायमीटर, और लूप को क्या किया जा रहा है, उसके डायमीटर के अलॉन्ग रोटेट कर दे रहे हैं पैरेलल टू द वायर के पैरेलल 30 डिग्री फ्रॉम द पोजीशन एज सोन। 30 डिग्री जिस पोजीशन में, उसे 30 डिग्री पे क्या कर दिया जाता है, रोटेट कर दिया जाता है। तो हमसे पूछा है कि आगे उसने क्या पूछा है कि इफ़ द करंट इन द वायर आर अपोजिट डायरेक्शन, अगर वायर्स में जो करंट है ये किस में हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो टॉर्क जो होगा लूप के इसके न्यू पोजीशन पे क्या होगा, ये कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो हमें फाइनली क्या फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है। तो 5th पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, टॉर्क। तो टाउ क्या होता है हमारे पास, टाउ होता है m क्रॉस b। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टाउ इक्वल्स टू mb साइन थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ओके, तो m क्या होता है, i इंटू ए, एरिया ऑफ लूप, पाई ए स्क्वायर इंटू बी ये हमारा कितना आ जाएगा, दोनों वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन में क्या होगा, 2 पाई डी इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टॉर्क यहाँ से कितना आ जाएगा, ये टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से
म्यू नॉट आई स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 2d। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखें अगर फिफ्थ क्वेश्चन का, तो बी ऑप्शन क्या हो रहा है, इसे मैच कर रहा है। सो बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, Which of the following statement is are correct in the given figure? इस क्वेश्चन में हमें गिवन फिगर गिवन है जिसमें हमारे पास एक वायर है ए बी सी डी, जिसमें एक I2 करंट ऐसे फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और हमारे पास एक करंट सोर्स है जिस I1 करंट फ्लो हो रहा है, जिससे I करंट का सिंबल होता है, इसीलिए ये करंट सोर्स होगा। और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये क्रॉस से रिप्रेजेंट हो रहा है। क्रॉस हमें पता है क्या होता है, जो प्लेन इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्शन होती है, मतलब प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। और ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं नीचे। नेट फोर्स ऑन द लूप इज जीरो, नेट टॉर्क ऑन द लूप इज जीरो, लूप विल रोटेट क्लॉकवाइज, लूप विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो लूप है इस पर फोर्सेस लगेंगे तो कैसे लगेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, और स्ट्रेट कंडक्टर अपने आसपास कंसेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करता है। मतलब अब ये स्ट्रेट कंडक्टर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, तो इस प्लेन में ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। वो किस तरह की होंगी, इस तरह की सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ऐसी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी हमारे पास, और इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपने थंब को इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर की डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, तो हमारी जो फिंगर्स होंगी वो जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की हो जाएगी। तो वो हमारे पास इस तरह आएगी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गई। अब क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये इस फिगर में हम देखते हैं, इस लेफ्ट वाली फिगर, ये लेफ्ट और राइट दोनों सेम फिगर्स हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये बी ए वायर के पैरेलल है, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं, तो ये बी ए लाइन के पैरेलल है। अब हमें मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पता है क्या होता है। मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालते हैं हम, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा हुआ है, उस पर हम कैसे निकालते हैं, आई इंटू एल क्रॉस बी। एल क्या होता है, वायर की लेंथ होती है, और उसकी डायरेक्शन किसके अलोंग मानी जाती है, करंट की डायरेक्शन के अलोंग। और बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब बी ए के लिए ये एल की डायरेक्शन हो गई, और बी क्या है, हमारी सर्कुलर ही है मैग्नेटिक फील्ड है। तो बी ए और बी दोनों ही पैरेलल हो गई हैं, तो इसके लिए मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एल क्रॉस बी, अगर एल और बी दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। तो हमारा एफ बी ए इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ऐसे ही जो सी डी सेगमेंट है उसके लिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और इसमें करंट इस तरह जा रहा है, तो मतलब ये दोनों एंटी पैरेलल हो गए। एंटी पैरेलल के लिए भी हमें क्या पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, तो सी डी सेगमेंट पे भी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा, एफ सी डी भी जीरो हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि ये, अब हम बीसी के लिए देखते हैं। बीसी पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह जा रही है, इस तरह जा रही है, और करंट इस तरफ जा रहा है। एल क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या हो गई, एल की डायरेक्शन ये हो गई, ये एल की डायरेक्शन हो गई, ये बी की डायरेक्शन हो गई। अब राइट हैंड रूल से हम क्रॉस प्रोडक्ट एल क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालेंगे। अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे एल से बी की तरफ, तो हमारा जो राइट हैंड का थंब है वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर पॉइंट करेगा। तो मतलब बीसी सेगमेंट के लिए
ये मैग्नेटिक फोर्स आउट ऑफ द प्लेन एक्ट करेगा। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि एडी जो सेगमेंट है उस पर क्या होगा, उस पर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। अब बीसी और एडी दोनों ही करंट सोर्स I1 के लिए सिमेट्रिकली लोकेटेड है, ये हम फिगर में देख सकते हैं। तो इन पर लगने वाले फोर्सेस हैं वो सेम ही मैग्नीट्यूड के होंगे। अगर इस पर F लग रहा होगा फोर्स बाहर की तरफ, तो इसकी तरफ इस सेगमेंट पर अंदर की तरफ F लग रहा होगा। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन के हैं और सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, सेम पॉइंट पर नहीं लग रहे, दोनों डिस्टेंस पर लग रहे हैं। तो ये दोनों मिलकर एक कपल बनाएंगे। अब कपल ऑफ फोर्सेस हमें पता है कि टॉर्क प्रोड्यूस करता है किसी भी बॉडी पर, तो ये एक टॉर्क हो जाएगा। इस पर नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इस सेगमेंट पर जीरो है, इस सेगमेंट पर भी जीरो है, इस सेगमेंट और इस सेगमेंट पे फोर्सेज है पर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स ऑन द लूप जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। पर क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट फोर्सेस सेम पॉइंट पे नहीं लग रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे लग के कपल बना रहे हैं, तो नेट एक टॉर्क बन जाएगा। तो नेट टॉर्क ऑन द लूप जीरो नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। अब टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो उससे क्या होगा, ये जो वायर है ABCD ये इस O डैश एक्सिस के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। अब अगर मेरे पास ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो हम O से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये जो वायर है ये YZ प्लेन में रोटेट कर रही है। और किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही होगी, ये एंड बाहर की तरफ जा रहा है, ये एंड अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये हमें क्लॉकवाइज रोटेट करती हुई दिखेगी। तो ओ से अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास ये क्लॉकवाइज रोटेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन कौन से हो गए, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 आर द करेक्ट ऑप्शंस।